Nilashish, if you can hear me, just go ahead. Well, yes, absolutely. At this point at Mathura Road, there are a number of BJP workers and they are being led by BJP MLA and the leader of opposition, Rambir Biduri at this point. They say that they demand the resignation of Arvind Kejriwal and the ousting of Manish Sisodia as well. They say that the policy, of course, is a scam. They talk about Arvind Kejriwal resigning. In fact, Rambir Biduri, who just spoke to us at times now, said that they also wish to go to the president and they will make an application to go to the president as well over this issue. They say that it has now been exposed the kind of scam policy that it was. They are going to in fact be marching here from near National Sports Club of India towards the house of Manish Sisodia's residence, which is a little down the way, down the road here. But at this point, a number of BJP workers here present with flags, with a number of placards demanding the resignation of Arvind Kejriwal as well as Manish Sisodia. So yes, while the ED continues to probe into the matter now, the BJP workers have come onto the streets and they demand that Manish Sisodia be ousted from the cabinet and also a resignation from Arvind Kejriwal. Absolutely. And now, in fact, Nilashish, not just the CBI, but the Enforcement Directorate has also started probing the matter. Raids are being conducted. The ED has taken cognizance of the CBI FIR that names Manish Sisodia and others. Well, yes, absolutely. The entire list of accused are under the scanner, given the fact that now the ED is also probing them. Of course, the CBI had filed its FIR. The CBI had investigated. They've taken statements from various people. They've recorded statements from a number of the accused. But as of now, the ED has also stepped in. 30 locations across the country, there were raids conducted by the ED. Of course, they're investigating the matter at this point. And simultaneously, the BJP has taken to the streets as well, as we see right now. As we are saying, very significantly, they also wish to, in fact, meet with the president with regard to this issue. But as of now, of course, when we talk about the CBI's case, they have said that certain people were questioned, interrogated, their statements were recorded, and that has also led to certain revelations in this particular case. Of course, the BJP is simultaneously questioning why is it that if the new excise policy was as great as the Aam Aadmi Party leaders say, why was it taken back? Right. So right, these kinds of questions are being raised. The multi-agency probe begins now. The Bharatiya Janata Party workers have hit the streets demanding resignation of Arvind Kejriwal. Can you go ahead and speak to some of them? Well, yes, absolutely. सर, आप यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि शराब नीति जो एक साल से भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कहती आ रही है कि ये नीति इनकी बहुत गलत थी और इसमें इन्होंने बहुत कमीशन खाया है, 2% से 12% तक ले गए। इनका कहना था कि रेवेन्यू और एक्साइज हजारों करोड़ रुपया बढ़कर आएगा, जो 8 महीने के अंदर ही इनको 144 करोड़ रुपया देना, अपने डीलरों को देना पड़ गया। ऐसी क्या नीति थी? इसमें हजारों करोड़ का घपला है। इसके कारण इस आम आदमी पार्टी केजरीवाल को और सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी के घर? हम लोग मार्च ये कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़कर। आप किसी भी व्यक्ति से पूछो, वो कहेगा मनीष सिसोदिया दलाल है, उसने मोटी रिश्वत खाई है। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। आप दिल्ली के एक शराबी से ही पूछना, वो शराबी भी कहेगा हाँ मनीष सिसोदिया दलाली खा गया। सिर्फ एक आम आदमी पार्टी की आंखों में बदनामी की और बेईमानी की चर्बी चढ़ी हुई है, जो उसे गिरफ्तार नहीं करवा रही। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे गिरफ्तारी हो मनीष सिसोदिया की। ऑफ कोर्स एज यू कैन हियर द सेंटिमेंट्स हियर,
of the protesters, the workers here at this point in time. Also, what they are saying is that there should be arrests in this case as well. आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं? हम ये कहना चाहेंगे जी, दिल्ली सरकार ने जो घोटाला कर रखा है शराब नीति के अंदर और उसके शिक्षा नीति के अंदर, वो लोगों के सामने जग जाहिर है और एक न एक दिन ये इसका इनको भुगतान करना पड़ेगा और ये सलाखों के पीछे जरूर रहेंगे। आप क्या कहेंगे? सलाखों के पीछे होना चाहिए? होना ही चाहिए इनको, जो इन्होंने काम किया है उस हिसाब से इनको सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। They demand that there be jail term also, as you can see, but of course simultaneously, as we kept saying, the investigation continues on part of the central agencies. We'll try and get in a word from some of the other leaders here as well. Sir, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, उसमें क्या अभी मांग है आपकी? क्योंकि ईडी जो है फिलहाल वो ऑलरेडी इस केस पे लग गई है। निश्चित रूप से हम सब लोगों की मांग, चाहे सदन हो सदन के बाहर हो, हमने बार बार कहा है, जिस प्रकार से केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार में, शराब के घोटाले में घिरी हुई है, तुरंत मनीष सिसोदिया जी को रिजाइन देना चाहिए। और यदि वो कहे जी हम बहुत बड़े पाक साक ईमानदार हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं, यदि आप ईमानदार थे तो आपने शराब की पॉलिसी से टर्न डाउन क्यों किया? क्यों उस पॉलिसी के आधार पर क्यों नहीं चलने दिया? यही नहीं, यदि आप कहते हैं तो 2% की जगह आपने 12% कमीशन का किस प्रकार का बंदर बांट हुआ, ये कल के स्ट्रिंग ऑपरेशन से पता लगता है। आज हमारा सीधा सीधा कहना है, लड़ाई सदन के अंदर भी लड़ी थी, बाहर भी लड़ी थी, अब आगे भी लड़ेंगे जब तक। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि सीबीआई ने जांच कर ली है, उनको क्लीन चिट मिला है और ईडी को भी कुछ नहीं मिलेगा। इस पे क्या कहेंगे? मेरे को लगता है हम पार्टी सीबीआई की प्रवक्ता बन गई क्या? वो किस प्रकार के क्लीन चिट की बात करते हैं? कौन सी क्लीन चिट मिल गई? कोई को बरगलाने का काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को गुमराह करते हैं और आप जैसे लोगों के इनका पत्रकारों का या दूसरे मीडिया का वो फायदा उठाना चाहते हैं। आज तक क्लीन चिट, यदि क्लीन चिट मिली होती तो 30 लोगों के घरों पर आज छापे नहीं पड़े होते। अब पता लग गया है कि वास्तव में ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसकी पोल अब खुलने वाली है, ये हम आपके से कहना चाहते हैं। Well, there you can hear the leaders and the workers all in unison saying that their demand is that Manish Sisodia and Arvind Kejriwal resign from their respective posts. Absolutely. In fact, Manish Sisodia has responded to the multi-agency probe and he has challenged the agencies saying कि कुछ भी नहीं मिलेगा। Neelashish. If you could repeat your question, please. Well, Neelashish, stay on with us. We also have some reactions coming in. The probe in the alleged liquor gate scam explodes after the CBI. Now, the Enforcement Directorate is also conducting raids in over 50 locations. Sources, however, said that no ED team has reached the residence of the Deputy Chief Minister, who is the #1 accused in the case. Raids currently underway in Delhi, Gurugram, Lucknow, Hyderabad, Mumbai and Bengaluru. दिल्ली शराब घोटाले मामले में इस वक्त हम आरोपी नंबर 12 MS महादेव लिकर B303 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के ऑफिस में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है महादेव मंत्रा प्राइवेट लिमिटेड का। इस बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं, जानते हैं इस ऑफिस में कौन आता है, कौन इसके ऑनर हैं और क्या यहाँ पे काम होता है और किस तरीके से यहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं। क्योंकि इस ऑफिस पे सीबीआई ने अपनी जो FIR करी है, इस ऑफिस का एड्रेस डाला है, उसका नाम डाला है, महादेव के नाम से कई सारे ऑफिसेज हैं। फिलहाल यहाँ पे ऑफिस बंद है। ऑफिस के यहाँ के बिल्डिंग के गार्ड हैं, इनका कहना है कि इस बिल्डिंग में कई सारे ऑफिसेज चलते हैं, बेसमेंट पे, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पर जो स्टाफ है वो 4 से 5 की संख्या में रोजाना यहाँ पे आते हैं और कोई फिक्स टाइम नहीं है यहाँ पे स्टाफ के आने का। कभी शाम को 3 बजे आते हैं, कभी 4 बजे आते हैं और एक फिक्स टाइम पे ड्यूटी नहीं होती। जितने समय का काम होता है यहाँ से यहाँ पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि रोजाना 4 से 5 स्टाफ यहाँ पे आता है। फिलहाल इस वक्त ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं है, लेकिन जो गार्ड ने हमें ऑफ कैमरा बताया कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो ऑफिस से अपना सामान निकालने का काम कर रहे हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ सामान यहाँ से ले जाते हैं। फिलहाल
जो सीबीआई ने अपनी एफआईआर के अंदर इस बिल्डिंग का जो एड्रेस डाला है वो महादेव लिकर्स के नाम से डाला है। हालांकि महादेव लिकर के नाम से हमें कोई यहाँ पे बोर्ड नजर नहीं आ रहा है, लेकिन महादेव के नाम से और दूसरी कंपनियां जो हैं लिस्टेड, उनके बोर्ड यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक महादेव मंत्रा का है, और अगर बिल्डिंग के आप शुरुआत में जाएंगे और अंदर देखेंगे सीधा महादेव स्ट्रेचर प्राइवेट लिमिटेड के 2 ऐसे बोर्ड हमें नजर आए हैं। लेकिन सीबीआई ने इस बिल्डिंग में एक अपना एड्रेस दिया है और बताया है कि B303 का ये प्लॉट जो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में है, यहाँ पे महादेव लिकर का ऑफिस चलता है और इसको भी अपनी सीबीआई में 12 नंबर आरोपी बनाया गया है। Meanwhile, the BJP has hit the streets protesting against the Aam Aadmi Party, demanding resignation of Kejriwal and also sacking of Manish Sisodia. मनीष सिसोदिया जी बहुत बड़े क्रिमिनल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्रिमिनल माइंड जो होता है, कल जिस प्रकार से उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की स्टिंग को, और सीबीआई को कड़े रूप से आकर के स्टेटमेंट देना पड़ा कि नो क्लीन चिट हैज बीन गिवन इन दिस केस। सीबीआई को कहना पड़ रहा है तुम जिसका नाम ले रहे हो उसका कोई मतलब ही नहीं इस केस से। तो ये जो क्रिमिनल माइंड दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ईडी क्या जितनी एजेंसीज हो, इन जो बहुत चतुर चालाक बने हुए हैं, इन लोगों के तह तक जाना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। The Deputy Chief Minister of the National Capital, Manish Sisodia, has also responded to the ED raids. He says kuch nahi milega and that the agencies are being used to just target the opposition. पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी है। नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। आप लोगों से सूचना सामना करता है आए, मैं तो सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी है? मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया। मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहां से। All right, with that, we're slipping into a very short break. News and updates will continue. Stay on with us.